How is everyone? Good evening, Adarsh, Ramizul Akhtar, Nilesh. How is everyone? Hello, Tamanna. Hello, user. We'll wait for 1 to 2 minutes and let others also join. It's a very, very important session as I would be guiding the students. What are the important NCRTs that you need to read? Because the students, I personally think they come to me and there must be a genuine and a common problem for all the students. NCRT कौन सी पढ़नी है? N number of people they say कि पुरानी पढ़नी है, नई पढ़नी है, ये पढ़ो, वो पढ़ो. NCRT itself is. Thank you, Nilesh. Hello, Tamanna. Hello, Sahil, Kiran. How's everyone? So it is very much important to know what not to read, at least if what to read is importantly equally important. So along with it, you should also know what not to read and how to follow this NCRT. How questions are coming from NCRT, which are the important. There are some NCRTs which are there. वहाँ से directly line by line question आते हैं. Any other book that is required other than NCRT to cover the basic, etc. are the various fundamentals which I would be discussing. Good evening, Sahil. Various fundamentals that I would be discussing. Hello, Muktika, Sadhana. And before I start off with the class to let you know the students की कौन सी NCRT है, कैसे पढ़नी है, XYZ other things are there. I just want to know from the student itself, from you all who are joining, what are the NCRTs that you are following, firstly, secondly, and guidelines that you are following while your preparation for the basic things is being done. Hello, Guna. आप कौन सी NCRT, everyone, it's for everyone. What are the various NCRTs that you people are following? Just let me know your plan that you are already doing. If something is going contrary, you need to improve upon the things. I'll definitely let you know. So, what are the important NCRTs that you people are following? Ashum, a very good evening. Hello, Adarsh. So, friends, just let me know NCRTs आप कौन सी पढ़ रहे हैं पहले तो. Okay, that's good. Nice, nice, very good. Hello, Sushant. So, anything that you want to students want to share with me before I start off with the class? Hello, Tamanna. And just let me know NCRTs आप कौन सी पढ़ रहे हैं पहले तो ये बात है because एक normal जो is it essential to read all NCRT? This is one of the important questions. Definitely, I will be answering it in a very short span of time because there is a one common myth that is there कि 6th से लेके 12th तक सब NCRT पढ़नी है. Am I correct on this, friends? If you are free and available, yes. I think I need to check my schedule on Monday or Tuesday. Just Shishant, एक बार आने से पहले just give me leave me a message on Telegram so I can just let you know the exact schedule because I think may not be Monday is a afternoon. I have a class scheduled for the Plus platform also. Just leave a message on the Telegram group. This I do not have much more idea, so that I'm going through 6 to 12 through our foundation for preparation. ठीक है. Hello Solanki. Hello Ankush. Any other thing that you want? Any students? What are the NCRTs that you people are reading, and for which subjects you are reading those NCRTs? कौन से सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? Geography plus history, okay. Polity, geography, economics, okay. History, yes. Science, history, geopolitics, etc.
आप पढ़ भी चुके हो, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन इज ओल्ड के न्यू पढ़ रहे हो? ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसी मतलब पुराना एडिशन एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? हेलो नदीम, हाउ आर यू? एक्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑफ, फिर पीसीएम की तो जरूरत ही नहीं है, ओल्ड प्लस न्यू। हेलो अभिषेक, हिस्ट्री में स्नेल सर वीडियो हिस्ट्री के, ओके। नहीं, आई एम जस्ट फोकसिंग अपॉन द एनसीईआरटी बुक्स, not on any other thing other than that. I myself get very little time to watch to other videos, तो फिर को इतना पता नहीं है सबका। चलो, हिस्ट्री में सर वीडियो, ओके। मेडिवल के लिए मॉडर्न के लिए कौन सी एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, 2-3 things I would be guiding you before the start of the class. The first thing, एंशिएंट पढ़ी या नहीं? ओके, ठीक है, डेफिनेटली क्यों नहीं पढ़नी है यार, इतनी सिंपल सी है। प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, दिस क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली टेक अप। प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू नीड टू क्लियर टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। A very important question. Any other question which you want me to take up in the course of the discussion that we will be taking up for 1 hour? Any question which you focus कि आपको ये problem लग रही है? Do not think about others also. आपको अगर कोई problem लग रही है other than NCERTs, if you think XYZ is a problem for you while you are preparing for the exam, just let me know. Hello Gurvinder, hello Krishnappa. For history, Bipin Chandra, Spectrum, Tamil Nadu NCERTs, 9 months are more than sufficient, Adarsh, more than sufficient. Video course enough rather than to read NCERT and directly to standard books. Ramizul Akhtar, I do not know about who is taking up this videos, और अगर कैसा पढ़ा रहे हैं ये भी नहीं पता. So I won't be able to comment upon this कि videos में कौन पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है. Both the things are important. I'm preparing for 2020. This will be my first, so please. Regarding yes, I should know what to. Yes. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं जैसे फारसी टीचिंग, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम इन दैट. क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स, फ्रेंकली टेक टॉकिंग, मेरे पास और किसी भी जो भी XYZ पर्सन मे आर सो बिजी, आई डू नॉट हैव अ टाइम टू वॉच अदर्स वीडियोस की कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या कर रहे हैं. आई डू नॉट हैव अ टाइम फॉर दैट. तो मैंने वो हार्डली आई मेरे को नहीं लगता कि मैंने लेटेस्टली कोई वीडियोस भी देखी होगी कि कौन क्या कर रहा है. चलो, let's stick to the basics and then come to the point for the class ki exactly which NCERT is needed to be focused upon and how to crack the exam starting even from today till next September, next means that, or then for the final selection. It is not my concern कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है. My only concern is from today आपको क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए so that you are able to go through the exam. Different students are there, they come for guidance, they come for various things. The most important part, I personally believe, of UPSC section is a strategy part. And the implementation of that strategy is equally, and I would say even more relevant and even more important. No, Ramjul, I do not believe it personally. But the thing is, आपका काम थोड़ा easy हो जाता है. I'll come to every aspect of this. 1 hour is more than sufficient to deal. If needed, then we can take up more special lectures on this. No problem with that. उसकी कोई problem नहीं है. Next thing. So my concern is basically from here on to make a plan for you, such a plan that could be implementable
and that could be executable by you. Planning is very important aspect for the preparation, and equally or even more important is the implementation of that particular thing. So how you have to start off, I'm taking it for consideration that even if today is your first day and you have to pick up your books after this first lecture, you should be in a position to prepare your base in such a way ताकि आपका pre और mains दोनों के दोनों easily clear हो जाए. So that is what my agenda would be for the class. Hello Vijeta, hello Shruti. So my focusing point, the first thing that I would do, thoda sa basics and then I'll directly within a half a minute I'll jump to NCRTs. Good evening. The first is I would advise each and every student to have at home what is the syllabus of UPSC. And by heart, the both the syllabus, that is for the pre and for the mains. आपको रट्टा होना चाहिए कि syllabus है क्या, पहले बात. Second thing, based upon that syllabus, what are the important questions that are being asked by UPSC from that particular syllabus for approximately from 2014 you could start, another 5 to 6 years you can start questions both for pre and both for the mains. Logically distributing the time for syllabus, even friends, if you analyze the syllabus and spend 2 days just for analyzing the syllabus and another 3 days for analyzing the papers. No problem. No. Actually, I'm more comfortable. I have a chair. जैसे मैं थक जाऊंगा, I'll definitely sit on a chair. Thank you very much for the concern. I'm actually more comfortable by वो था कि एक feeling नहीं आती बैठ के पढ़ाने की इतनी ज़्यादा मेरे को. Every person has his own way of teaching. So I feel more comfortable while standing. That's the reason. ठीक है. और किसी सियाने पुरुष ने बोला है जिसमें वजन होता है वो नीचे होता है, जो वजन कम होता है वो थोड़ा सा खड़ा होता है. So in the context that you people are preparing, it is more burden is on you people. So I am comparatively more comfortable. जिसमें ज्यादा गुण होते हैं वो थोड़ा दबा होता है. So that was on the lighter side. So second thing is that the questions are there. Even if you friends you spent 5 days on this thing, it is not a bad investment at all, I would say. No problem. मैं मजाक ही कर रहा हूँ, ठीक है. I just feel more comfortable. 5 days just on analyzing what is the syllabus and what is the question that UPSC is asking. अगर आप ये friends 5 days की investment करो ना, the investment of 5 days, that will save approximately your 1 year minimum. आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है और उससे ज्यादा पता लग जाएगा क्या नहीं पढ़ना है. Because n number of material is available in the market, either in the offline mode or in the online mode. इतना ज़्यादा material available है जिसकी कोई limit ही नहीं है. And freely available है और भी कोई problem नहीं है. सब लोग जिसको जो दिल करता है अपने मन की उड़ास निकालता है, यो जी मैंने ये पढ़ा था आज डाल के हटूंगा इंटरनेट पे. That may be important that just that person just may be wanting कि उसने research करी है सुबह से लेकर शाम तक, उसको article डालना, he is putting that article. But if you invest these 5 days just for analyzing what is the syllabus or UPSC question किस तरीके से पूछ सकता है, just for the simple reason that UPSC has a particular standard. इस standard से नीचे नहीं गिरेगा UPSC, ये पक्का श्योर है. There may be, अगर हम स्टेट एग्जाम देते हैं, स्टेट में बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे फैक्ट पूछ लेते हैं, that is not what UPSC asked. UPSC has a particular standard and a question would be of a standard level only. ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लिया UPSC ने. First thing. Second thing, if you invest this question 3 days for just analyzing कि कौन कौन सा एरिया है और कहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ रही है, बार बार पूछ रही है और घुमा के पूछ रही है. Just I'll give you a small example. Yes, just I'll give you a small example. A question is coming constantly, alternate year, regarding DPSP, regarding preamble, regarding fundamental rights or fundamental duties.
if you have seen the mains paper, the question definitely is coming from this area, definitely आ रहा है किसी ना किसी तरीके से, घुमा के फिरा के सिंपल तरीके से आ रहा है, तो कर लो ना यार इसको सुभाष कश्यप से कवर अच्छे तरीके से. The thing is, the students, they follow just Lakshmikant, that is thing. Lakshmikant, I would say, is definitely an important book that need to be read, but only mostly it covers only the prelims aspect and does not even touch, I would say, even the mains aspect. Hello, Nidhi, Latha Rai, and Suchi. It does not touch the mains aspect. It is basically focused only on the prelims aspect, pre-K factoring information. But if you have to understand various things that are there in preamble, DPSPs, fundamental rights, friends, जो सुभाष कश्यप वाली बुक है, इट इज वेरी सिंपल बुक, और उसको अगर पढ़ना है, इफ यू रीड दीज चैप्टर्स, इट इज नॉट मोर देन, फॉर एग्जांपल, काम के 50-60 पेज से ज्यादा नहीं है. रीड दीज पेजेस, रीड दिस टॉपिक फ्रॉम देयर. एनालाइज कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड हिस्ट्री. हिस्ट्री में आप जो भी लास्ट 10 ईयर्स का लोगे, हेलो पूजा, लास्ट 10 ईयर्स का लोगे, तो उसमें आप इस तरीके गो फॉर दैट कंपाइलेशन विच गिव्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि आपको एंशिएंट में कौन से कितने क्वेश्चन आए, और एंशिएंट में भी टॉपिक वाइज, हाउ मेनी फ्रॉम द स्टोन एज, हाउ मेनी फ्रॉम हड़प्पन, हाउ मेनी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So while you would be analyzing this question wise, it will become comparatively easy. यहाँ यार बार बार इंडस से क्वेश्चन आ रहा है, और बार बार यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 टॉपिक्स इंडस में वहीं से रिपीट हो रहे हैं. सेकंड थिंग, देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज कमिंग ऑन प्रेसिडेंट, और वहीं से आ रहा है, घुमा फिरा के आ रहा है. President is comparatively more important for the prelims, and for the mains perspective it is governor that is more important. Governor से पूछने के chances बनते. लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्वेश्चन है, या अब्यूज ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नर है, या 356 आर्टिकल है, कैसे ना कैसे वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं. So fix a certain area, fix a particular area कि कहाँ से questions आ रहे हैं, and this last 10 year paper will be definitely of a very good use. 5, 6, 7 years paper definitely of a good use कि from where the questions are comparatively coming. First, यहाँ तक any doubt to any students till now? अभी तक कोई doubt है तो just let me know. हाँ पूजा, जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट मेरे को 10 मिनट दीजिए. आई वुड बी लेट मी जस्ट कंप्लीट कि एनसीईआरटीज वाला कंप्लीट कर दें एक बार, बेसिक्स, देन मूव टू सेकंड पार्ट, देन टू थर्ड पार्ट. ठीक है, चलो, दिस इज बेसिक्स. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज एनसीईआरटी. कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? लेट्स गो ऑन. ना कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? We'll start and cover almost every subject. When you think about geography, yes, I'll come. This is the next point which I would be coming. एक बार books बता दे, उसके बाद notes कैसे बनाने हैं उस एनसीईआरटी. That is the second point. That is geography. Many no problem. Hello नेहा, कैसे हैं? Many students say कि 6 to 12th पढ़ लो geography, ये कर लो, वो कर लो. I do not know. After you have gone through last 10 years paper, geography, 6th to 8th is old NCERT that is important. In this old NCERT, it is world geography that has been given. वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां पे मैपिंग दी होती है कि कौन सा स्ट्रेट कहां पे पास होता है, कौन सा सी किस किस को टच करता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस थिंग्स आर देयर. इट इज गिवन वेरी ब्यूटीफुली इन एनसीईआरटी, एंड आई पर्सनली बिलीव कि नहीं, इट कैन नॉट बी डन पूजा लाइव. सिर्फ लाइव है, उसके बाद इट वॉन्ट बी अवेलेबल. आपको यू हैव टू थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा इसको देखने के लिए. वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल यू आर डूइंग वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखो नॉर्मली आप क्या होता है, क्वेश्चन मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम दिस बुक्स ओनली. 6th, 7th, 8th की ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो दिया हुआ वहीं से क्वेश्चंस आते हैं.
और अगर कुछ रीसेंट करंट में हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, बाकी ऑल द क्वेश्चंस वुड बी कमिंग फ्रॉम देयर. While you are doing this world geography old NCRT, definitely follow Atlas. Very well. जो भी लोकेशन वहां पे करोगे उसको डायरेक्टली एटलस में देखो. Priyanka, it is not new NCRT is not even covering this part. वो टच भी नहीं करती. कवरिंग करना तो बहुत बड़ा बात है. Because it does not even, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही नहीं उसमें. फिर तो ठीक है, इट्स वेरी बेटर फॉर यू, नो प्रॉब्लम. फिर तो आपको इस सेक्शन में फर्स्टली एनसीईआरटी इज देयर. रुक मैं आता हूँ. नहीं, इट इज वो +1 +2 में नहीं दिया हुआ. इट्स नॉट गिवन. अख्तर के कि रमीजुल अख्तर उसमें नहीं दिया हुआ. दैट इज व्हाट इज नॉट बीइंग कवर्ड. Yes, you have to read this part. It in new NCERT it is not covered from any class 6 to 12th. It is not being covered. आपको ये करना पड़ेगा यहाँ से. Second part is +1 old NCERT. The name of the book is Fundamentals of Geography. पूजा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ. मेरे को बहुत ही लिमिटेड आता है. सीरियसली आई एम नॉट सेइंग. हाँ, इतना डेफिनेटली आता है कि यूपीएससी में जुगाड़ करवा सकता हूँ. आपका रुकेगा नहीं पेपर, ये पक्का है. ठीक है. और उसका रीजन भी मेरे को एमए का नहीं पता उसमें क्या पढ़ते हैं. हाँ, लेकिन मेरे को बोलेगा कि यार ज्योग्राफी में ये चीज बता दो, मैं ये बता दूं. हाँ, ये यहाँ पे दिया हुआ, पढ़ लो. हो सकता है आपने ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन मेरे को इतना डेफिनेटली पता है कि इतना पढ़ के हमारा काम हो जाएगा. ये पक्का पता है क्योंकि ज्योग्राफी आपका तो फिर ज्यादा पढ़ा. डेफिनेटली आदर्श विल कम टू दैट पॉइंट. फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. इस नाम की, सेम नाम की 2 किताबें आती हैं. ओल्ड एनसीईआरटी नई नहीं दी हुई है. ये पहली एक में दिया होगा जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी दिया होगा, एंड सेकंड में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया. ये आपको दोनों की दोनों, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ही है. ये तो मेंस का पूरा सिलेबस का पार्ट ही है. डाटा नहीं यहां से उठाना, बिकॉज डाटा दैट इज गिवन इज इन कंपैरेटिवली ओल्ड डाटा. डाटा यहां से नहीं उठाना. रिसोर्सेज कहां कहां पे सिचुएटेड है. 2014 में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आया था. फर्स्टली. सेकेंडली, फिजिकल ज्योग्राफी. व्हेन यू रीड दिस ज्योग्राफी, अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो आपको अभी, व्हेन यू रीड दिस ज्योग्राफी you will, और आपने लास्ट 10 years के क्वेश्चन पढ़े होंगे, 7-8 साल के, 5 साल के, you will find approximately 12 to 13, 14, 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस फिजिकल ज्योग्राफी से लाइन बाय लाइन उठा के यूपीएससी में देखने को मिल जाएगी. लाइन बाय लाइन, आई एम सेइंग, विद लाइन, सेम लाइन. सो यूपीएससी पिक्स अप फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैरा एंड गिव्स इट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. इस एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी से व्हेन यू रीड, इट इज वेरी ब्यूटीफुल बुक. Second thing you have to read. Hello Shubham, hello Narendra. इस पढ़ने के बाद read +1 new NCERT. It will be just a cake walk for you people. बहुत ही easily cover हो जाए. क्यों? Because 90% plus has already been covered over here. And जो ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, दैट इज अ फार बेटर बुक देन दिस वन. ये बहुत ही बढ़िया बुक है. +1 की ओल्ड एनसीईआरटी. नई एनसीईआरटी में कुछ नहीं आता, वहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. पुरानी एनसीईआरटी से बार बार उठ के लाइन बाय लाइन आ रहे हैं. और 90% न्यू एनसीईआरटी 80 to 90% कवर कर रही है पुरानी वाली एनसीईआरटी. प्लस मच एक्स्ट्रा इज ऑल्सो गिवन विद प्रॉपर पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग. तो न्यू वाली एनसीईआरटी दैट वुड बी अ केक वॉक ओनली. और +2 की न्यू पढ़ लो. This is what you have to read for NCERT for geography. While reading geography, definitely, I'm coming to that. Definitely go through the atlas. Next, other than NCERT, another book that you have to read
ये ओल्ड न्यू कौन सी रीड करनी है सर? पूजा कौन किसकी बात कर रहे हो? ये वाली, दिस इज न्यू एनसीईआरटी +2, ये दोनों न्यू है। इससे पहले वाला सब ओल्ड एनसीईआरटी है। अभी ठीक है? ओके। डॉक्टर शर्मिन, कहाँ से आप, कहाँ से हैं? आर यू फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम समवेयर आउटसाइड? यू आर द फ्रॉम मुंबई। आप ऐसा करिए, देयर आर एन, ऑनलाइन मिल जाएगी पहली बात तो। आप अगर सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना पसंद करते हैं उसको डाउनलोड, शायद दे में बी अलाउइंग आल्सो। नहीं तो एन नंबर ऑफ बुक स्टोर्स आर देयर इन यूपीएससी, तो आप वहां से उनको बोलिए, वो आपको मैसेज, सॉरी, कोरियर कर देंगे। जो भी पैसे लेंगे डायरेक्टली आपको कर देंगे। मेरा अपना एनसीईआरटी का 6 to 12 का जो भी इंपॉर्टेंट है पूरे का पूरा सिनॉप्सिस आता है। आप उनको बोलिए कि मलूका सर का सिनॉप्सिस दीजिए, वो आपको मेरा वाला सिनॉप्सिस मेल कर कोरियर कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 550 का पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा। इमेज रनर इज वन ऑफ द शॉप, काफी अच्छी शॉप है इमेज रनर्स, और बड़ा प्राइस भी बड़ा रीजनेबल है। इमेज रनर्स, ये डेफिनेटली इनको आप बोलिए, ये आपको कोरियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अपना सिनॉप्सिस भी आपको कोरियर कर देंगे, एनसीईआरटी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड बाय बी ऑल एनसीईआरटीज। फर्स्ट इतना हुआ। सेकंड थिंग इज, second thing that is important is GC Long. Hello Ranveer. GC Long का में दो पार्ट है, एक पहला और एक दूसरा। सेम बुक में दो पार्ट है। फर्स्ट 90 pages you do not have to read. Read from 91 to approximately 190 page number. ये पढ़ना है आपने। It is this part in which world climates are given, तो वहां से आता है। इट इज नहीं, पूजा नहीं पढ़नी 9th-10th की, ना ओल्ड पढ़नी है ना न्यू पढ़नी है। जीसी लॉन्ग करोगे, जीसी लॉन्ग का पार्ट 2 करोगे, 91 पेज से शुरू करना है, 190 पेज तक जाना। वर्ल्ड क्लाइमेट बहुत को अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। हेलो रवि, एनी प्रॉब्लम इन ज्योग्राफी पार्ट अभी तक है तो बताओ, देन वी मूव टू नेक्स्ट। हिंदी मीडियम, पूजा इसके लिए आती होगी, एनसीईआरटी हिंदी में आती है कि नहीं आती? तो फिर ठीक है, आती है तो बस हो जाएगा, फिर क्या प्रॉब्लम है। डीसी लॉग पार्ट 1 में पीजी पेज नंबर एन, पार्ट 1 इज पेज नंबर 1 to 90 प्रियंका। 91 के आगे वाला पार्ट 2 है, उसी किताब में लिखा हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में वर्ल्ड क्लाइमेट्स है, पहले वाले में फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, वो हो जाएगा, आपको बड़ा आसानी से पता लग जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट्स टिल नाउ? हाँ, जीसी लियोंग का वो ठीक है, हो जाएगा, दैट यू नीड टू रीड। चलो नेक्स्ट मूव। हेलो सलेश, ओके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। रिपीट द सोर्स, एक सेकेंड। Just let me, I'm unable to read it, just let me again in 10 seconds. ओके, शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। 6th 7th 8th की पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है प्लस एटलस। उसके बाद +1 की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, जो दो किताबें हैं। इसका एक में है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी में है रिसोर्सेज वाली है, प्लस इंडस्ट्रीज वाली है, वो पढ़नी है आपने। सेकंड, थर्ड थिंग इज आपने जो नई वाली पढ़नी है +1 +2 की। एंड फोर्थ इज जीसी लियोंग का पार्ट 2 पढ़ना है, सेकंड पार्ट, सेम पार्ट उसी किताब में। गुड आंसर्स। अभी एक बार एनसीईआरटी सोर्सेज कर लें, प्रीवियस स्लाइड स्क्रीनशॉट। शर्मिन वो स्लाइड्स नहीं, आई एम जस्ट राइटिंग इट, वो अभी तो सब गया, स्लाइड्स कैन नॉट बी डन, आई एम जस्ट राइटिंग, इसकी वजह से आई हैव टू क्लीन दैट अगेन एंड अगेन। इफ यू वांट आई कैन जस्ट रिपीट इट।
आप पेन से लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट. डू यू वांट मी टू रिपीट? ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. फॉर history, when you have to do ancient history, read +1 Tamil Nadu board book. For medieval history, again Tamil Nadu board book. हिस्ट्री की बुक्स में बारे में बताएं कौन. हाँ, हिस्ट्री पे ही हूँ. आई कम टू हिस्ट्री ओनली. ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 8 11th ओल्ड 2 बुक्स, ठीक है. डीसी लॉन्ग पार्ट 2, ठीक है. प्लस नई वाली +1 +2 की जो पास वाई रेफरेंस है, बड़ी जल्दी हो जाएगी वो तो, क्योंकि +1 ओल्ड में आप सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है. दिस इज बेसिक्स. आपको ये पढ़ना पड़ेगा. यू हैव एन ऑप्शन. Either you can read from old NCERT of +1 or +1 old NCERT that will cover ancient plus medieval part. That is up to your choice. For this thing, for modern history, one of the option that will be workable but only for prelims, I'm saying, is spectrum. Only for prelims, I'm saying. Hello Ambarish, से कैसे हैं? For mains, you need to look upon two things. Firstly, तो बुक्स की जगह पूजा, कौन सी बुक्स की जगह आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स की जगह बोल रहे हैं? आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. तो एनसीईआरटी, ठीक है. सेकंड थिंग इज बिपिन चंद्रा. अप्रोक्सीमेटली आपको हाफ बिपिन चंद्रा पढ़नी पड़ेगी, हाफ बुक. तमन्ना, आई वुड एडवाइस यू, बस 1 मिनट दीजिए मेरे को. हाँ, डेफिनेटली अदर शैल कम टू साइंस, डेफिनेटली. सेकंड थिंग इज ग्रोवर एंड ग्रोवर. ये बुक हाफ पढ़नी है, और ये बुक में से हमें पढ़ने अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 pages. That's all. This will be covering. हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, ठीक है. अगर आप एंशियंट स्किप करें, एंशियंट मेडिवल, तमन्ना आप एंशियंट को ना स्किप करिए, आई वुड एडवाइज यू. क्योंकि जैसे इस बार आई विल गिव यू 2 एग्जांपल. वन क्वेश्चन दैट केम, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ हड़प्पन साइट. ये बड़ा ही ऐसे निकलने वाला क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एक और क्वेश्चन था, अशोक राजा हैज बीन मेंशन्ड इन विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन, गुजरा इंस्क्रिप्शन. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप नहीं करोगे दूसरा मार्क के आएगा, 4 नंबर डायरेक्टली सीधे हो गए. मॉडर्न, अगर एशियन आई वुड एडवाइज यू नॉट टू स्किप. मेडिवल स्किप करनी है तो सिर्फ लिमिटेड सा पढ़ के जाइए. टर्मिनोलॉजी, जस्ट रीड टर्मिनोलॉजी की किस टर्म का मतलब क्या है. मेडिवल आप इतना पढ़ के स्किप कर सकते हैं. आई वुड एडवाइज यू नॉट टू स्किप एनसीईआरटी, एंशिएंट वाली. एंशिएंट एनसीईआरटी है तमिलनाडु. हाँ, मेडिवल आई कैन स्किप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मेडिवल में अगर वर्स्ट सर्कम आपसे क्या टर्मिनोलॉजी पूछेंगे, इस टर्म का मतलब क्या होता है, दैट यू कैन डू. और मेरे को लगता है पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री की टर्म्स भी लिखेंगी तो 2-3 पेज में खत्म हो जाएगा आपके लिए. ट्राई टू डू दैट, उतना करके जाइए. बाकी इफ यू वांट यू कैन स्किप फॉर मेडिवल हिस्ट्री पार्ट, ठीक है. फॉर दिस आई वुड टेक अप अनदर क्लास कि विपिन चंद्रा में पढ़ना क्या है फॉर मेंस पर्सपेक्टिव. प्री के लिए स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. मेंस के लिए इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ विपिन चंद्रा एंड ग्रोवर व्हिच यू हैव टू रीड इन दिस कंटेक्स्ट. फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री,
It is old NCRT of 9th class and plus 2, 10 plus 2 old NCRT again. If you have to read NCRT, this is a simple book. दो simple 9th class और 12th class ये पढ़ के जाइए, काफी अच्छा comprehensively इन्होंने अलग अलग चीज को as per the syllabus इन पढ़ने की कोशिश करिए. This is what you have to read for history. Any problem in this one? Means क्या चीज पूछ रहे हैं आप? नहीं, 10th class नहीं, 10th class is not required. 9th class and plus 2 class. हाँ, अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए शर्मी. लेट मी कम टू आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो. इतना ठीक है अभी तक. तो मैंने जस्ट गिव मी थोड़ा सा टाइम दीजिए. अभी वी हैव अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स मोर. 5-7 मिनट और लगेंगे. जस्ट लेट मी फिनिश ऑफ विद दिस क्लास. जो सॉरी एनसीईआरटी सोर्सेज है उस आफ्टर दैट आई विल कम टू योर पॉइंट. ठीक है. Yes, it covers both prelims and mains. Shall we move to next subject? +1 Tamil Nadu ki +1. Vipin Chandra, I have to take up a special class for that also, in which I would be guiding the students about which chapter you need to read, or and I will not be exactly telling the chapters, but the pages कि उन chapter में पढ़ना कौन से पेज पढ़ने हैं. पूरे का पूरा chapter भी क्यों पढ़ना है जब काम हमारे pages से चल जाएगा. तो जितना important हुआ I will try to cover. Yes. आपका क्लास कौन सा क्लास? नेक्स्ट क्लास लेट्स सी कब है नेक्स्ट क्लास. टुमारो आई हैव 2 more classes that are scheduled. आपको वहीं प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा. कल 2 और क्लासेस है मेरी, and approximately I would be taking up 10 plus classes in a span of another 10 to 12 days. Quality के लिए go read from mains perspective. अब एक पुरानी किताब आती है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. हेलो सतीश. एक किताब आती है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. इसको पूरा नहीं पढ़ना है. इससे पढ़ना है हमने अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 पेजेस. रीजनलिज्म, this is one part you have to read. Second part is secularism. Hello Divya. Hello Ashut. Third thing, fundamentalism. सिर्फ ये चीज ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना. पूरी की पूरी एनसीईआरटी में आपको ये दिस वुड बी कवर्ड इन 10 से 12 पेज 15 पेज में खत्म हो जाएगा. रीड ओनली दिस मच, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. पहला बात. सेकंड पार्ट, रीड लक्ष्मीकांत. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल बुक पढ़नी है. प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड रीड as per the syllabus, as per the questions which are coming in UPSC. Only approximately if you talk about Subhash Kashyap, अप्रोक्सीमेटली आपको 1/4 सुभाष कश्यप पढ़नी पड़ेगी एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग. पूरी की पूरी बुक नहीं है. आई ट्राई टू हैव अच्छा एक और लेक्चर से आपको बता रहे थे इन 1 or 2 days कुछ और भी लेक्चर्स अरेंज है मेरे लिए. तो आई विल बी अकॉर्डिंगली टेकिंग अप दोस लेक्चर्स एंड गाइडिंग की कहाँ पे क्या बनना है. कौन सी बुक के? एक बुक के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना. एक बुक में तो आप सिंपली मार्क ही कर लीजिए.
यस, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एनसीईआरटी है। प्रियंका ट्राई टू रीड, पूरी पूरी पढ़ लो एनसीईआरटी, काफी अच्छी बुक है। और ये वाली लक्ष्मीकांत, ठीक है, पढ़नी पड़ेगी, अच्छी बुरी है तो चलो अलग बात है, पढ़नी पड़ेगी, यस आई वुड से। ओके, स्वाश कश्यप 1/4 ही पढ़नी है एज पर द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। पॉलिटी के लिए आपको इतना है, बाकी मेंस के लिए इट इज टोटली द करंट अफेयर्स व्हिच आर कमिंग। ट्राई टू रीड द करंट अफेयर्स, ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स, हिंदू पढ़ने की कोशिश करिए, साथ में ही हिंदू के साथ साथ आपको इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स पढ़ो, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। पॉलिटी एनसीईआरटी जरूरत नहीं है, सच इट्स नॉट ओनली वन बुक दैट इज इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाओ, एक बुक के नोट्स क्यों बनाओगे आप? नोट्स मोस्टली तब बनते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, 11th क्लास की जरूरत नहीं है इतनी, ऐसा लक्ष्मीकांत सिंपल बुक आपको समझ आ जाएगी। जब एक से ज्यादा किताब होती हैं तो नोट्स बनाने की पड़ती है जरूरत है, एक किताब के तो नोट्स जरूरत नहीं है ना। नो नीड, नो नीड, जब आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो तो वहां पे ये सब कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, रीड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी दैट इज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इसको पढ़ो, आपको काफी हद तक बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर आपने जाना है, रीड अ वेरी सिंपल बुक बाय द नेम शंकर गणेशन। तो आपका बेसिक्स काफी हद तक क्लियर हो जाएगा इस बुक से। शंकर गणेशन पढ़ोगे तो बेसिक्स काफी हद तक क्लियर हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, एंड जो भी क्वेश्चंस आएंगे दैट वुड बी बेसिकली लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन करोगे तो आपको काफी आसान रहेगा। न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर डेफिनेटली कवर करते जाओ। नहीं, रमेश सिंह इज नॉट रिक्वायर्ड, इतना मोटी किताब तो जरूरत नहीं पड़ती, ना संजीव जी की जरूरत है ना रमेश जी की जरूरत है, दोनों की जरूरत नहीं है। बेसिक्स क्लियर करने हैं तो बड़ी सिंपल सी बुक है शंकर गणेशन, ये पढ़ लो यार, ये किताब सिंपल सी किताब है, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो करंट आएगा वो तो न्यूज़पेपर और से ही आएगा। हाँ, शंकर गणेशन सिंपल बुक है, +1 की नहीं, +2 एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आप पढ़ोगे। शंकर गणेशन इज बेसिक्स आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, प्लस सेकेंड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज आपका जो करंट अफेयर है उसको आप क्लब कर लो। पूजा हिंदी का आपको पता करना पड़ेगा, हिंदी का नहीं मेरे को पता कि आती है कि नहीं आती। रुनर सर की वीडियो अच्छी है, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। Environment, you need to read 4 chapters of biology book. Yes, the 12th class, chapter number 13 to 16. This is important. Second, a very important source is 9th and 10th class ICSE board book by Beta Publication. This is a very important book that you have to cover. Second thing, इसमें से भी पहले आप ये वाली पढ़ोगे, वो रिपीट तो करना, रिवाइज तो करना पड़ेगा पूजा बार बार। पहले आप 10th वाली किताब पढ़ोगे एंड देन यू रीड अबाउट द 9th क्लास, और जैसे ही पढ़ोगे अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% आपका कवर हो जाएगा। थर्ड थिंग, देन गो फॉर शंकर, डायरेक्टली शंकर पे नहीं जाना, समझ ही नहीं आती, बड़ी ड्राई बुक है। आफ्टर फॉर्म दिस थिंग टू बी योर बेसिस फॉर द एनवायरमेंट। जब ये वाली बुक पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, आप 10th वाली बुक पढ़ोगे, 10th क्लास की बुक पढ़ोगे एनवायरमेंट की, मिनिमम आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिर्फ इसी किताब में से आई हुई हैं। 20 क्वेश्चंस मिनिमम, सिर्फ एक ही किताब से। मल्टीपल क्वेश्चंस आर देयर, एक 100 पेज के आसपास की किताब है।
नहीं, हिंदी का नहीं पता पूजा मेरे को इस पार्ट के लिए कि 9th 10th क्लास की आती है कि नहीं आती, वो नहीं पता मेरे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। हेलो अंकिता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस बुक। उसके बाद शंकर पढ़ो। शंकर बड़ी ड्राई बुक है, याद नहीं रहने वाली, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जस्ट कंपाइलेशन ऑफ द फैक्ट इज गिवन। कुछ आता है, अब तो वो भी आना बंद हो गया। आईसीएससी 9th 10th क्लास की है, उसका अलग से तो नाम नहीं है। 9th 10th क्लास एनवायरमेंट की बुक है, आप उनको बोलिए ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। अगर इफ यूर आउट ऑफ दिल्ली तो ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे किसी को बोल दीजिए, आपको कोरियर कर देंगे दिल्ली में। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से है बेसिकली। जो एक तो क्राइसिस मैनेजमेंट सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट आती है, और एक योजना आया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, बहुत बढ़िया है। अभी आपके पास उसको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन क्या है, देन लेट मी नो। बेसिकली आई वुड बी टेकिंग अप अ स्पेशल क्लास। उसमें क्या करवाऊंगा, नहीं मैं आपको बताता हूँ। जस्ट रीड दिस, अभी आप ये पढ़िए फॉर द टाइम बिंग। रीड दिस। उस ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, दैट इट कैन नॉट सॉल्व द दिस मेंस क्वेश्चंस, तो वहां पे करना पड़ेगा। हेलो शुभशीष, कैसे हो? शंकर, शंकर अभी क्या करो, आप एक बार शंकर पढ़ लो। I'll take up a special class in the month of November regarding the Shankar book only. जो 300 से लेके 350 पेज है, इस 350 पेजेस में से I'll mark approximately 60 to 70 pages, that will be sufficient. एक बार आप पूरा पढ़ लो, उसके बाद इसको 10 बार पढ़ेंगे हम। एंड इट विल नॉट हैपन कि रीड 18 से लेके 21 पेज पढ़ लो, 41 से लेके 43 पढ़ लो। इट वॉन्ट बी लाइक दिस। इट विल बेसिकली बी फोकसिंग अपॉन कि कौन सी पेज लाइन, कौन से पेज में से कौन कौन सी लाइन से इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं मार्क करवाऊंगा आपको विद अ स्पेशल क्लास, और दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन शंकर से आना हुआ तो डेफिनेटली यहां से आ जाएगा, नहीं छोड़ो। Ultimately, it is the basics. Shankar mein, it is basically a dry compilation of the facts that is given, friends. Dry compilation तो याद नहीं रहने वाला है, simple as that. So it is very much important. I'll take up a special class regarding this, और जैसे ही होगा I'll try to cover it. No problem with that. ठीक है? एक इतना हुआ environment. Second thing, someone और एक जो पूछ रहे थे, कौन सी रह गया, बायोलॉजी के लिए ना, नहीं someone was asking, और क्या पूछ रहे थे, एक science, okay, how to make crisp notes of the, हाँ I'll next point is this only. हेलो प्रभजोत। साइंस, साइंस आदर्श, बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। हिंदू पढ़ते हो? अच्छा, हिंदू पढ़ते हो, ठीक है। प्लस एक बुक आती है मनोरमा ईयर बुक, उसमें कुछ 8 से 10 पेज आते हैं। रीड दैट फॉर साइंस। साइंस में, अब किसी को बुरा मत लगे, ये मैं पहले क्लियर ही बोल रहा हूँ, अगर बुरा लगेगा तो पहले ही माफी मांग लेता हूँ। साइंस में 2 क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम, अगर बुरी से बुरी किस्मत है तो, बुरी से बुरी किस्मत है तो बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑलमोस्ट सबको आता है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़े हुए हैं तो सबको आता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है तो डॉक्टर भी हिला नहीं पाते, उनको भी नहीं करना होता, तो छोड़ो ना यार साइंस वाइंस। मैं बड़ा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जस्ट फॉर द सिंपल रीजन इज दैट आई हैव सीन एन नंबर ऑफ कोचिंग्स, वो 25-25 क्लास बायोलॉजी की ले लेते हैं। अच्छा, 25-25 क्लास बायोलॉजी की ले लेते हैं, अरे क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 आएंगे तो छोड़ दो ना बायोलॉजी। उसकी अच्छा है, उसकी वजह से है, तो 25 इंटू 2.5 आवर्स कितना बना, 25 गुना 50, 50 60 62.5 आवर्स। Why can't we invest this hours in a revision?
मजा आ जाएगा ना, हर चीज दो दो बार रिवाइज हो जाएगी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, और एक बात भी पक्का है, अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो कुछ नहीं याद रहने वाली बायोलॉजी. मानते हो ना इस बात को? फ्रैंकली बताओ सब लोग. ठीक है कि याद रहेगी नहीं बायोलॉजी. सिंपल सी बात है. अब बोलो जी मैं तो रट के जाऊंगा, तो चले जाओ रट के. अगर क्वेश्चन आ गया सब करेंगे, नहीं वो भी आपको भी नहीं आएगा, एक ऐसा उल्टा सीधा पूछ लेंगे. So it is important to be very practical while you are preparing for the exam. ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ते हैं. इट इज नॉट एवरीथिंग अंडर द स्काई. जैसे एक तो लोगो भी है किसी का, एवरीथिंग अंडर द स्काई. ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स. यूपीएससी हैज अ वेरी डिफाइंड सिलेबस एंड उसके इम्प्लीकेशंस आपको पढ़ने पड़ते हैं. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, जस्ट लेट मी नो. इसके बाद नेक्स्ट इज द नोट्स. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज एनसीईआरटी प्लस नोट्स कैसे बनानी है. अगर इस सब चक्कर से बचना चाहते हो नहीं ये ऐसा नहीं होता. जस्ट आइदर टू वेज आर देयर. या तो मेरा अपना सिनॉप्सिस आता है, 500-550 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा. एनसीईआरटी 6 to 12 जो भी काम का है, ओल्ड राजेंद्र नगर फोटोस्टेट में शॉप्स है, वहां को बोलिए वो आपको कोरियर कर देंगे. दैट इज अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी. इकोनॉमी शंकर नेशन प्लस अख्तर प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स. दो चीज पढ़िए, मैक्रो इकोनॉमिक्स और शंकर नेशन, प्लस जो भी है उसको करंट के साथ ऐड कर दीजिए. Either you can go for my notes that are very very comprehensively covered. I've covered almost every. ऐसा कुछ लाइन नहीं है जो इम्पोर्टेंट है और उस बुक में नहीं दिया. और पूरी की पूरी 42 एनसीईआरटी इतनी ज्यादा है, उसको इतने में कंपाइल किया हुआ. दैट इज सफिशिएंट. फर्स्टली. सेकेंडली, इफ यू हैव टू मेक द नोट्स, जैसे मैंने बोला कि आपको +1 की, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो +1 की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको ओल्ड, और +2 की भी आपको, और +1 की आपको पढ़नी है न्यू. नदीम, आई हैव नॉट वॉच दैट. मेरे को नहीं पता. मैं सीरियसली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आई एम नॉट लाइंग टू एनीवन. मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैं वीडियोस देख लूँ किसी का. आई डू नॉट गेट द टाइम टू वॉच द वीडियोस. अगर आपको, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो क्या प्रॉब्लम है बताइए. मेरे को ये आई एम वेरी क्लियरली सेइंग, मेरे को आई हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो, एनी वीडियोस आई हैव नॉट वॉच्ड. नहीं, अंकिता, यू हैव टू रीड शंकर गणेशन एटलीस्ट वन स्टैंडर्ड बुक. ज्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है, ज्यादा मोटी नहीं है. मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे उसको करने के लिए. और कितना टाइम लगेगा? 3 दिन में बड़े आराम से हो जाएगी. चलो, जैसे अगर ये है ओवरलैपिंग, काफी हद तक ओवरलैपिंग है. इसकी आप नोट्स बना सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट लगता है. आइदर यू कैन राइट, अगर राइट नहीं कर सकते तो मार्क कर लो. पहले ये पढ़नी है, उसके बाद दूसरी पढ़नी है. अगर एक ही बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसके क्या नोट्स बनाओगे? पहले बार पढ़ते हो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है, वेरी फ्रेंकली. एंड सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको पता, पहले बार में मार्क मत करो. हाँ, बुक में अंडरलाइन करो. पहले बार अंडरलाइन नहीं करना, पहले बार मार्क नहीं करना. क्योंकि जब पहले बार पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द सेकंड टाइम, अंडरलाइन देयर. हाँ जी, आप पेंसिल से कर लो, बाद में हटा देना. जब दूसरी बार पढ़ रहे होगे, देन ट्राई टू अंडरलाइन, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. अब सब चीज अंडरलाइन नहीं करोगे, लिमिटेड. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सीन द लक्ष्मीकांत ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स. वो उन शेरों ने पूरी की पूरी अंडरलाइन करी होती है लक्ष्मीकांत में. भाई नॉर्मली मैं उनसे मजाक में पूछ लेता हूँ, यार ये बताओ इसमें जो ऐसी लाइन ढूंढ के बताओ जो अंडरलाइन नहीं करी हुई तुमने. अगर सभी इंपॉर्टेंट है तो मार्क करने की क्या जरूरत है? मार्क सिर्फ उसी को, पहली चीज में समझने की कोशिश करो.
याद रखने का तरीका, इट इज ओनली, आई वुड से कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा, आदर्श आपकी किताब है ऐसी? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बिकॉज आई एम इनटू दिस the mentoring session for last approximately 4 years. Many students have got even a single digit rank. The students have scored under my guidance. And लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लिमिटेड मार्क करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यार, पहले बार मत करना मार्क, दूसरे बार करना। सेकंड थिंग, जब दूसरे बार मार्क करोगे, आप लिमिटेड मार्क करोगे और उसको फिर जल्दी जल्दी से पढ़ लोगे। एंड उसको अगर अगर पॉसिबल हो सकता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर। कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे, इंग्लिश बस काम चला आती है हमें, ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट उसको अपनी मदर टंग में समझने की कोशिश करो, अगर कुछ कंसेप्ट दिया हुआ तो। If there is some good concept that has been given, try to understand that particular concept, or for example in your mother tongue। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। उसको समझो, अच्छे तरीके से समझो, अपनी मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, अल्टीमेटली वही याद रहने वाला है। तो अंग्रेजी में पढ़ोगे आधा भूल जाओगे। Very, I talk very frankly like this only, but it is equally important aspect। Yes, definitely। As per the sessions would be coming up, I'll try to conduct the classes accordingly। So it is very much important। आप उसके जैसे भी नोट्स, कंसाइज नोट्स बना रहे हैं, कंसाइज नोट्स बनाइए, एंड कंसाइज नोट्स के साथ साथ इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट उसको रिवाइज करिए, फर्स्टली। सेकेंडली, जब भी कुछ भी लिख रहे हो, ट्राई टू राइट आंसर्स। जब भी कुछ पढ़ रहे हो, अगर उसका मेंस में कुछ आया हुआ है, ट्राई टू राइट आंसर्स। उसके आंसर्स डेफिनेटली लिखने की कोशिश करो। आंसर्स लिखोगे, इनिशियल फेज में बहुत प्रॉब्लम आएगी, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन इवन टू स्टार्ट अ क्वेश्चन। आप आंसर लिखोगे, क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में इतना कुछ है, लेकिन शुरू कैसे करें? शुरू करने में कभी कभी 5-5 मिनट लग जाते हैं, 10-10 मिनट लग जाते हैं कि शुरू कैसे करें यार तैयारी कि आंसर। मेरे पेरेंट्स नहीं किया, आप यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे। फास्ट, आप जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार करो और जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करो, दैट इज द ओनली एस्पेक्ट। हाँ पूजा, नो प्रॉब्लम, मेरे आई एम देयर टू हेल्प। मैं वही नेक्स्ट आई एम कमिंग टू दैट, आपने आपके बिना कहे मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ। यस, व्हेन यू कम टू आंसर राइटिंग, नॉर्मल प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट फेस, वो क्वेश्चन शुरू ही नहीं करने आता। हाँ, क्वेश्चन शुरू शुरू कैसे करना है, ये क्या है, वो क्या, एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सुना सुना सब कुछ होता है, लेकिन आता कुछ नहीं होता। आता होता तो रिकॉल पूरा नहीं हो पाता, आधा याद हो पाता है। जितना भी याद हो रहा है इनिशियल फेज में, जितना भी जंबलिंग ऊपर नीचे है, इट हैपेंस विद तमन्ना, विद ऑलमोस्ट एवरीवन। उसको वैसे ही लिखने की कोशिश करिए। नहीं, अच्युत, मेरे को पॉल साइंस का नहीं पता। इनिशियल फेज में आई थिंक टुमारो इज माई क्लास दैट हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर आंसर राइटिंग ओनली। तो आप आंसर राइटिंग वाली क्लास को फॉलो करिए, वहां पे बहुत ज्यादा लेबोरेटली मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। एंड फॉर द टाइम बिंग, जितना भी हमारे पास अभी टाइम बचा है, तो उसको लिखने की कोशिश करो, चाहे 50 वर्ड ही लिखो और लिखो। n number of things are there, चाहे उसको लिखो। and if you want your answers to be evaluated by me, send me on a group by the name मलुका सर। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, मैं एक मिनट लिखता हूँ आपको। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर कुछ भी क्वेश्चन लिखना है, ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। काफी वीडियोस यूट्यूब पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा देयर, और वहां पे मेरे को लिख के भेजिए, आई विल evaluate those answers for you। That is totally free for the students who are there on the Unacademy platform। Any help that student want, we try to help the students for that। Try to send your answers to me, I'll try to evaluate। हाँ, पर एक बात मैं अभी बोल रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको चेक होके मिलेंगे आंसर्स, बिकॉज और क्लासेस भी होती है और असाइनमेंट्स भी होती हैं। विद इन अ वीक आई विल evaluate and give it back to you। तो जितना भी विद इन 1 hour मेरे से हो पाया, एज पर माई कैपेबिलिटी, आई ट्राई टू गिव इट टू द स्टूडेंट्स। इफ थैंक यू। जितना भी मैं दे पाया, जितना मेरे में कैपेबिलिटी थी, विद इन 1 hour आई ट्राई टू डिलीवर। वेरियस अदर क्वेश्चंस आर
coming up from the students perspective. I have n number of classes which are scheduled. हर महीने 12-13 questions 12-13 special session मैंने लेने होते हैं. So that is what is scheduled. Minimum 12 to 13 sessions are there. Do follow those sessions. Any doubt at any point of a time, just let me know. मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिए. I'll try to help you out on the telegram also. Thank you very much, students. हाँ जी, आप लिख के मेरे को भेज सकते हैं. रमेजुल प्लीज ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा. इट्स नॉट इवन इन माय हैंड्स, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हाँ, आगे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई एम टेकिंग अप एन नंबर ऑफ अदर क्लासेस. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. ठीक है, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे फिर भी कोई आप मैसेज करना चाहें, कोई सजेशन लेना चाहें मेरे से, आई विल ट्राई टू गेट. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. गुड नाइट, टेक केयर.